Now today we'll be discussing the last application of dimensions. But before we start with third application of dimensions, let's have a quick revision of whatever we have discussed so far. So in the first session, first lecture of this chapter, we started with what is science. So it is systematic study of knowledge. Then physics is study of all natural phenomena. For any measurement, we need two things: a unit and a number. Numbers we already know, so we started with unit. Unit is a standard of reference used for the measurement of physical quantities. Then there are certain characteristics that a unit need to satisfy. It should be universally accepted, it should be easily available, it should be reproducible, it should not vary with time and place. These were the certain important characteristics of selection of unit. Then all the physical quantities. Now what is a physical quantity? So anything that can be measured is a physical quantity. We have divided physical quantities into three types: fundamental quantity, derived quantity and supplementary quantities. Fundamental quantities are the one which do not depend on any other physical quantity for its measurement. Supplementary units are the unit that assist the fundamental units. Derived quantities are the quantities which depends on one or more fundamental quantities for its measurement. Then we learn fundamental quantities and supplementary quantities. There are 7 fundamental quantities: LMT, tail, length, mass, time, temperature, amount of substance, luminous intensity and electric current. For supplementary quantity, we have plane angle and solid angle. Other than these, all the physical quantities are derived quantity. So the corresponding units of these quantities will be called as like fundamental quantity ka unit is fundamental unit. For derived quantity, derived unit. For supplementary quantity, you have supplementary unit. Alright. Then we studied one of the method to measurement for the measurement of length, and that was parallax method. And we discussed few questions also on the same. Then we started with dimensions, the favorite part of this topic. Dimensions are the powers to which the fundamental units are raised to get unit of that physical quantities. Then we found dimensions for a lot of quantities, starting with length, area, volume, density, mass, time, then speed, velocity, acceleration, force, work, power, pressure, momentum, moment of inertia, torque, kinetic energy, potential energy, permittivity, gravitational constant G, electric potential, electric charge, etc. etc. Then we started with uses of dimension. The first is to check correctness of the equation. So we will be given an equation wherein we have to find dimensions on both the sides and to check whether all the dimensions are same. If the dimensions are same, we would say that the equation is dimensionally correct. Remember, if an equation is dimensionally correct, it need not be numerically correct. याद है, numbers हम dimensions में नहीं लेते हैं. हाँ, बढ़कर उल्टा है कि कोई equation न्यूमेरिकली करेक्ट है तो डेफिनेटली वो डायमेंशनली भी क्या होना चाहिए, करेक्ट. फिर हमने एक सेकेंड यूज देखा डायमेंशंस का, जिसमें हम कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करते थे. वेरी गुड. 1 न्यूटन इज 10⁵ डायल और 1 जूल इज 10⁷ अर्ग्स. नाउ ये वाले सेशन में वी विल बी डिराइविंग फॉर्मूला. हाँ, फॉर्मूला डिराइव करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस. इसमें कई सारे स्टेप्स है बच्चों जो आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो अच्छा है. बट वो स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंपल चीज़ें जो शायद अगर हम लोग क्लियर कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों. ठीक है. सो लेट स्टार्ट विद टुडे सेशन. बच्चों, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि y इज इक्वल टू 4 इंटू x², ऐसे कोई इक्वेशन है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं x का वैल्यू चेंज करूँगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज. बराबर ना. सो या फिर एक टेबल बनाते हैं. y का वैल्यू, माफ़ कीजिए, हम x को चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली y चेंज होगा. तो x के हिसाब से y का वैल्यू, सपोज x इज 0, सो 0² विल गिव यू 0, सो y का वैल्यू भी 0 होगा. x का वैल्यू 1, तो 1² विल बी 1, 1 इंटू 4 विल गिव यू 4. x का वैल्यू 2, 2² विल बी 4, 4 4 16, साथ में करो मेरे. 3² विल बी 9 4 36. चलो नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे x का. जाओ, मैं 4 नहीं लेता, 5 ले सकते हो, कोई बात नहीं. 5² 25, 25 4 100. सो डू यू एग्री स्टूडेंट्स, व्हेन आई चेंज वैल्यू ऑफ x, अकॉर्डिंगली y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज. मैं ऐसे बोलूँ क्या बच्चों, जब मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, एज x इंक्रीजेस, कैन वी से y ऑल्सो इंक्रीजेस.
है ना, x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज। तो याद है इसको हम ऐसा लिखते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना, when x increases y also increases। बट यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स वो हो रहा है। तो जब मैं x को चेंज कर रहा हूँ तो y भी क्या हो रहा है, चेंज। तो हम ऐसा बोलते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, मतलब इफ यू चेंज x y विल ऑल्सो चेंज। ओके, यहाँ पर वो रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ओके, लेट अस हैव वन मोर इक्वेशन स्टूडेंट्स, वेयर इन मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 100 डिवाइडेड बाय x, 100 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, चलो जैसे आप बोलो 100 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं एक जीरो लिखूंगा तो इक्वेशन डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि जीरो स्क्वायर भी जीरो होगा, एनीथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो जीरो वाली सिचुएशन नहीं लेते हम सिंपल सिचुएशन लेते हैं। अगेन एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आप ऑब्जर्व करना बच्चों। सो अगर मैं एक्स का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ ये 100 होगा, राइट। इफ आई पुट x इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर विल बी 4, 100 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 25। नहीं कह रहे तो आप साइड में अपने पेज पर कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ सपोज इफ आई टेक x इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर विल बी 16, तो 100 बाय 16 विल गिव यू 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट देखो किस में। और जैसे अगर मैं 5 लिखूँ तो 5 स्क्वायर 25, 100 बाय 25 विल गिव यू 4। इफ आई मेक इट 10, 10 स्क्वायर 100 बाय 100 गिव्स यू 1। अब क्या हो रहा है, x को जब मैं चेंज कर रहा हूँ सो अकॉर्डिंगली y भी क्या हो रहा है, चेंज। सो व्हेन x चेंजेस y चेंजेस, यहाँ पर भी x चेंजेस y चेंजेस। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट, नाउ हियर व्हेन x इंक्रीजेस डू यू एग्री y डिक्रीजेस। देखो y का वैल्यू कम हो रहा है, समझ में। अब सोचो बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x y डिपेंड्स ऑन x, हियर ऑल्सो y डिपेंड्स ऑन x। तो मैं अगर आपसे एक बात बोलूँ कि y डिपेंड्स ऑन x, तो आपको क्या समझ में आएगा कि हाँ सर आप x चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा। ऐसा गारंटी के साथ बोल सकते हो कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, या x कम होगा तो y कम होगा। सी मैंने से y चेंजेस विथ x, इसका मतलब x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा। क्या यहाँ भी चेंज हो रहा है, यस सर, और यहाँ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो जब हम बोल देंगे कि y डिपेंड्स ऑन x, then I don't know whether it is directly proportional or it is inversely proportional. Are you getting what I'm saying? So अगर कोई आपसे कहता है कि mass, और फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, मतलब क्या समझ में आया कि अगर हम मास को चेंज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज। पर कैसे चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या स्क्वायर टाइम्स होगा, दैट वी डोंट नो। सो व्हेन आई से अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, इसका एक ही मतलब है कि एक को चेंज करोगे तो दूसरा चेंज होगा। किस प्रोपोर्शन में चेंज होगा, आई डोंट नो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई डोंट नो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आई डोंट नो। समझ में आ रहा है। अब ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो अब ये थर्ड एप्लीकेशन में या थर्ड यूजेस में वो ऐसा बोलते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन और यूजेस ऑफ डायमेंशन से आपको वो फाइंड आउट करना है कि डिपेंड इज डायरेक्टली और इनवर्सली। समझ में? सो दे विल ओनली से इट डिपेंड्स अपॉन दिस, दे विल नॉट से डायरेक्टली या इनवर्सली है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, या क्यूब है, या क्यूब रेज टू वॉट एवर एनी पावर इट कैन बी। आर यू गेटिंग? सो वो लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, इट डिपेंड्स। समझा बच्चों? इजी लग रहा है? वो सिर्फ बोलेंगे डिपेंड्स। डिपेंड्स कैन बी डायरेक्टली और इनवर्सली। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं डायरेक्टली या इनवर्सली? देखो सपोज मैं ऐसा लिखूँ y इज इक्वल टू, सपोज क्या यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर, और यहाँ इसको लिखा जाएगा 100 एक्स रेज टू -2। आई होप इसमें डाउट नहीं है। पावर जब नीचे से ऊपर गया तो नेगेटिव होता है, श्योर बच्चों? देख अभी हम डायमेंशन जब लिखते थे तो सेकेंड स्क्वायर में बोलता था नीचे है तो पावर नेगेटिव लिखता था, याद है ऐसा कुछ? सेम वैसे एक्स स्क्वायर जब ऊपर गया तो माइनस है। नाउ कैन वी से फॉर श्योर स्टूडेंट्स कि अगर पावर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर पावर में नेगेटिव है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। धीरे 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 हम अप्रोच कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट उनका क्या होगा, y डिपेंड्स ऑन x, दे विल नॉट टेल यू डायरेक्टली इनवर्सली। बाय यूजिंग डायमेंशंस यू विल ट्राई टू कैलकुलेट द पावर। अगर सॉल्व करने पे पावर पॉजिटिव आया यू विल से yes it depends and it is directly proportional, और अगर पावर नेगेटिव आया तो विल से yes it depends and the relation is inversely proportional।
आर यू गेटिंग? सपोज -3 आए, सोच घर बैठे बैठे सोच, -3 आए तो क्या बोलोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर को या क्यूब को, अच्छा क्या बोला? -3 बोला, -3, सो माइनस इनवर्सली 3 क्यूब को, +4 आया तो प्लस डायरेक्टली एंड पावर इज 4 टाइम्स। सब साथ में मेरे, okay, so they will say it depends can be directly or inversely. We will try to calculate these powers by using dimensions. If the powers are positive, directly proportional. If the powers are negative, it is inversely proportional. The only problem that we will get students, क्या आपको पता चल रहा है क्या प्रॉब्लम हमको आने वाली है? डायमेंशंस का प्रॉब्लम क्या था? डायमेंशंस किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है? सोचो घर पर और अपनी नोटबुक में लिख कर रखना, जब हम फिजिकली मिलेंगे आप याद दिलाना, सर आपने पूछा था मैंने खुद से लिखा था। एंड आई एम 100% अज्यूमिंग कि बच्चे ऑनेस्टी के साथ आंसर देंगे। डायमेंशंस किसका हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो ये बताएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो पावर भी बता देगा। डायमेंशन किसका इन्फॉर्मेशन नहीं देगा? नंबर का। ये नंबर जो है वो 4 आएगा, 40 आएगा, 1000 आएगा, करोड़ आएगा, 100 आएगा, उसका इंफॉर्मेशन डायमेंशन देने वाला नहीं है। समझ में आया? सो अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, तो हो सकता है सॉल्व करने पर आपको ऐसा कुछ आएगा, k इंटू रो स्क्वायर, रो क्यूब या -3 ऐसा कुछ आएगा। ये जो k है ना, k, इसका नॉलेज डायमेंशन नहीं देगा। समझा? सो जब आप डायमेंशंस के मेथड से यूज करके फॉर्मूला डिराइव करोगे तो किसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा? नंबर का। इज दैट क्लियर? बाकी आपको पावर्स का पता चल जाएगा, डायरेक्टली इनवर्सली पता चल जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। वो आपसे बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ही आपको करा देता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम पता है? ऐसा कुछ, डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिपेंड्स अपॉन, क्या बोला? डायरेक्टली है, इनवर्सली है? नहीं। अब आप डायमेंशंस के मेथड को यूज करके फॉर्मूला डिराइव करोगे, सिर्फ उस फॉर्मूले में किसका नॉलेज नहीं होगा मेरे पास? हाँ, नंबर का नॉलेज होने वाला नहीं है। आर वी क्लियर? समझ में? चलो चले आगे बच्चों। सो अब इफ यू वांट आप ये नोट कर सकते हो, हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम स्टेप वाइज करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने स्टेप वाइज किया था, इसको भी स्टेप वाइज करेंगे, आप जरा भी टेंशन मत लो। चलो मैं इरेज करते करते पूछता हूँ, आप मुझे बोलो डिपेंड मतलब डायरेक्टली या इनवर्सली या दोनों में से कुछ भी। वेरी गुड, दोनों में से कुछ भी। कैसे डिसाइड करोगे? पावर पॉजिटिव आया तो वेरी गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर नेगेटिव आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट। वो लोग आपको बोलने वाले डायरेक्टली या इनवर्सली नहीं, दे विल जस्ट से इट डिपेंड्स। किसका हम श्योरिटी के साथ वैल्यू नहीं बता पाएंगे? वो नंबर का, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन। क्वेश्चन, टाइम पीरियड of simple pendulum depends on length of pendulum and acceleration due to gravity. ठीक है? डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, सॉरी, डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। सिंपल सा क्वेश्चन। हम क्या करें बच्चों? एप्लीकेशन नंबर 3, वो मैं लिखवा दूंगा, थर्ड एप्लीकेशन क्या है। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है? टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, length is capital L, acceleration due to gravity is small g. So these are the three symbolic symbols that we use for time period, length and acceleration due to gravity. अच्छा, just in case अगर आपको डाउट है टाइम पीरियड का मतलब क्या, हाँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनो। टाइम पीरियड इज बेसिकली कोई भी ऐसा इवेंट जो रेपिटेटिव होता है, मतलब बार बार आता है,
तो उसको रिपीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। एनीथिंग दैट रिपीट्स इज पीरियोडिक, और जितने टाइम में वो रिपीट होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो रिपीट होगा उसको पीरियोडिक बोलते हैं। रिपीट होगा यानी इक्वल इंटरवल में रिपीट होना चाहिए, तो वो पीरियोडिक है। और फास्ट हो गया, कोई भी ऐसा इवेंट जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होगा इज पीरियोडिक। रिपीट होने को जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस दिन आपको ये लेक्चर मिल रहा होगा शायद उस दिन मंडे हो, ठीक है। सो अब मुझे बताओ, अगर उस दिन मंडे है तो वापस मंडे कब आएगा? हाँ, 7 डेज के बाद। क्या मंडे वो एक लास्ट मंडे होगा? वापस लाइफ में कभी मंडे नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। मंडे इज रिपीटेटिव इन नेचर। सो मंडे अपने आप को रिपीट करता है। ऐसा आज मंडे फिर 3 दिन के बाद मंडे है, फिर नेक्स्ट वीक में वो 10 दिन के बाद आता है, नहीं ना, वो फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है। सो मैं इसे समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि मंडे इज रिपीटेटिव इन नेचर। सो मंडे पीरियोडिक इवेंट है। मंडे का आना इज पीरियोडिक इवेंट, और उसका पीरियड कितना होगा? 7 डेज। ये समझ में? जैसे 15 अगस्त, क्या वो पीरियोडिक है? आफ्टर 1 ईयर वो रिपीट होता है, तो उसका रिपीटेशन का टाइम क्या हुआ? 1 ईयर। याद, एक फेमस डायलॉग है, रोज रोज दिवाली नहीं होती है, या रोज रोज क्रिसमस नहीं होता है, बराबर। सो व्हाट डज इट मीन कि वो सब भी एक फिक्स टाइम के बाद ही रिपीट होने वाले हैं। सो आपका बर्थडे भी रोज रोज नहीं, बराबर ना, बिकॉज वो भी एक साल के बाद रिपीट होता है। सो ऐसे इवेंट जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट होते हैं, ऑफकोर्स ये मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जब आप और फिजिक्स में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि देर आर प्रोसेसेस, देर आर इवेंट्स जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं, तो उनको पीरियोडिक बोलेंगे। जितने टाइम में रिपीट होंगे दैट इज टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? सो अब अगर मान लीजिए कोई पेंडुलम है, जैसे ये मार्कर को आप पेंडुलम लो, इसको मैंने यहाँ से डिस्टर्ब किया, यहाँ पर आया, यहाँ गया और यहाँ आया, इसके बाद ये सब कुछ रिपीट करेगा। देखो, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छे से देखो आप, चलो मैं ड्रॉ करके समझा दूँ। ये वो सपोर्ट है और ये आपका पेंडुलम। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसका देखो इवेंट्स क्या क्या है। ये यहाँ से इस तरफ जाएगा, फिर वो वापस आएगा उल्टे डायरेक्शन में, फिर वो ऐसे जाएगा और फिर वो ऐसे आएगा। अब इसके बाद वो सारी चीज़ें रिपीट करेगा। जब वो ऐसे जाएगा तो क्या ये पाथ वो ऑलरेडी चल चुका है? यस सर। क्या ये पाथ वो ऑलरेडी चल चुका है? तो उसका एक पीरियड क्या हुआ? जाना, आना, जाना और आना। दिस इज वन इवेंट। इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। समझा? सो कोई भी चीज, कोई भी ऐसा इवेंट जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट होगा इज पीरियोडिक। रिपीट होने को जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। चलो स्टार्ट कैसे करेंगे? व्हेन दे से डिपेंड्स, क्या वो बोले डायरेक्टली या इनवर्सली? नहीं। तो हम क्या करेंगे पता है? क्वेश्चंस को सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले यू विल अज्यूम, व्हाट यू विल अज्यूम। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहे कि टाइम पीरियड डिपेंड्स। सर आपने तो ऑलरेडी लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, और लेंथ का पावर सपोज मैंने x अज्यूम कर लिया। अब सोच, अगर x पॉजिटिव आएगा तो जाके कंफर्म होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर x नेगेटिव आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यू अज्यूम t इज प्रोपोर्शनल टू l रेज़ टू x। x का वैल्यू डिसाइड करेगा वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ, जो दिया था मैंने ऐसे लिखा। फिर आप बोलो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g रेज़ टू y। और कुछ है? नहीं, इतना ही। सो इन दोनों को आप एक साथ अगर कंबाइन करके लिखो तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू l रेज़ टू x इंटू g रेज़ टू y। एनी डाउट? दोनों को कंबाइन करके लिखा। नाउ टू रिमूव साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आई विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, सपोज दैट इज k। और ये k क्या होगा बच्चों? एक नंबर। नंबर हैज नो डायमेंशन, तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर k के डायमेंशन होंगे तो फिर आप फाइंड नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ऐसा बोलना पड़ता है k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये आपके सोल्यूशन का स्टेप 1। स्टेप 1 यू विल अज्यूम। इज दैट क्लियर? Whatever they had given in the form of question, you have expressed it in the terms of equation. Time period depends upon length. Directly, inversely, I don't know.
टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायरेक्टली इनवर्सली आई डोंट नो। अब क्या करेंगे इन स्टेप 2, क्या राइट दिस इज स्टेप 1। इन स्टेप 2 यू विल फाइंड डायमेंशंस। स्टेप 2 ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है बच्चों, तो आप ध्यान से सुनो। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है। स्टेप 2, फाइंड डायमेंशंस, फाइंड डायमेंशंस of all quantities in equation 1. Find dimensions of all quantities in equation 1. So equation 1 में जितनी भी क्वांटिटी सबके क्या फाइंड करोगे आप, डायमेंशंस। तो देखो इक्वेशन 1 में पहली क्वांटिटी कौन है, टाइम पीरियड है। हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। सो टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों, अच्छा टाइम फंडामेंटल या डिराइव्ड है, फंडामेंटल है, तो यूनिट क्या होगा, सेकेंड। क्या बोलोगे घर बैठे बैठे, चुपचाप, चुपचाप। इसका डायमेंशंस क्या होगा, l रेज टू 0, m रेज टू 0, t रेज टू 1। देन k नहीं फाइंड करना है, क्यों नहीं फाइंड करना है, बिकॉज k इज डायमेंशनलेस। ओके, देन वी हैव लेंथ। फॉर लेंथ व्हाट इज अ यूनिट, मीटर। अगेन इट इज फंडामेंटल, सो आप क्या लिखोगे, देखो l का जो डायमेंशंस होगा वो हो जाएगा l रेज टू 1, m रेज टू 0, t रेज टू 0। Now this is where you need to pay attention student। आपको l चाहिए, l रेज टू x चाहिए, रेज टू x चाहिए, तो आप यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, प्लीज ध्यान दो, रेज टू x और रेज टू x लिखोगे, बिकॉज द पावर इज x। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डायमेंशंस ऑफ l रेज टू x कैन बी रिटन एज 1 इंटू x x, 0 इंटू x 0, t इंटू 0 0। सर ये क्या किया, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, जस्ट गिव मी 2 minutes एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सपोज अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर रेज टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। यानी आप क्या करोगे, 2 2 2 3 हो जाएगा। अब ऐसा करने से अच्छा कैन यू नॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाई 3 इंटू एंड राइट इट एज 6। सो पावर का पावर, इंडाइसिस का मेथड है वो, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। सो ये l रेज टू 1 है, l रेज टू x है, 1 इंटू एक्स गिव्स यू व्हाट, x, 0 इंटू एक्स विल गिव यू व्हाट, 0। आई होप सबको समझा, सच्ची। अच्छा एक और देख लो, नो प्रॉब्लम, आप अच्छे से समझो बच्चों। बस सपोज अगर ऐसा होता y का क्यूब रेज टू 4, बोल क्या करेंगे, y रेज टू 12, डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। आर वी क्लियर, पावर का पावर, पावर्स गेट्स मल्टीप्लाई, पावर इनटू पावर, पावर गेट्स एडेड। क्या बोला, अगर ऐसा होता देख y क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वायर, तो क्या लिखेगा, y रेज टू 5 लिखेगा। यही मैं बोल रहा हूँ, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है वो, पावर का पावर मल्टीप्लाई, पावर इंटू पावर, पावर ऐड होगा। या अगर आप टेक्स्ट बुक की भाषा में समझना चाहते हो, बुक्स की लैंग्वेज में, सो एक्स रेज टू ए रेज टू बी इज एक्स रेज टू ए इंटू बी, एक्स रेज टू ए इंटू एक्स रेज टू बी इज एक्स रेज टू ए प्लस बी। सो इफ यू डोंट नो इट, आप प्लीज उसको नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर लिख के आपको समझाने की कोशिश करी है। चलो ये हो गया एल का। अब कौन बचा, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों मदद करो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फंडामेंटल या डिराइव्ड, डिराइव्ड। व्हाट वाज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, घर बैठे बैठे ऑनेस्टी के साथ अपनी अपनी बुक में लिखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, याद होना चाहिए बच्चों, नॉट गुड। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम से हमने डायमेंशन फाइंड किया था, उसका यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आना चाहिए बच्चों, दिस इज वेयर योर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों फंडामेंटल हो गया, तो क्या बोलोगे घर बैठे बैठे, चुपचाप यू राइट जी, देन व्हाट, LMT। बोल इसमें किलोग्राम है, नो सर, तो पावर 0, मीटर यस सर, पावर 1, सेकेंड स्क्वायर तो पावर -2। अब जी या जी रेज टू वाई, जी रेज टू वाई, जी रेज टू वाई। चलो अभी आप बोलो क्या आएगा, जी रेज टू वाई विल बी, बोलो बोलो, L रेज टू वाई, M रेज टू 0, T रेज टू -2y। सो मैंने क्या किया, स्टेप 1 जो भी उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है उसको इक्वेशन का फॉर्म में लिख दिया, या डिराइव इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 2, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इन इक्वेशन नंबर 1, फाइंड कर लिया। स्टेप 3 एनी केसेस, चलो मैं बताता हूँ, सारे डायमेंशंस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। उससे पहले आई एम गिविंग यू टाइम
प्लीज इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक, पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो, सो आई कीप स्टेप 1 एज इट इज। पॉज करके कॉपी करने के लिए कहा था मैंने। स्टेप 3, put dimensions in equation 1। put dimensions in equation 1। चलो मदद करो। टाइम का डायमेंशन मुझे याद है, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बच्चों आप अपनी बुक में अब भी आपने लिखा है L⁻⁴ M⁻⁴ T⁻⁴ ये समझा, इज इक्वल टू K इंटू L⁻x। बोलो L⁻x का डायमेंशन क्या था? यस, इट वाज L⁻x M⁻⁴ T⁻⁴ बराबर। G⁻y का डायमेंशन क्या था? L⁻y M⁻⁴ T⁻⁻2 सॉरी -2y। चेक कर लीजिए, यही था ना। Now this is where this will come into picture। देखो बोर्ड पर देखो, x⁻a इंटू x⁻b what x⁻a प्लस b है ना। अब यहाँ पे देख L⁻x है और L⁻y है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों पता है, नेक्स्ट स्टेप में सारे L के टर्म एक साथ ऑन द राइट हैंड साइड, दिस साइड आई एम गोइंग टू गेट L⁻0 M⁻⁴ T⁻1 इंटू K। अब देखो ये दो बार L कौन लिखेगा? मैंने L लिखा, M लिखा और T लिखा। आप मेरे साथ रहो बस, इट इज नॉट डिफिकल्ट, आई गारंटी इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट पे अटेंशन। ओके, अब यहाँ देख L⁻x L⁻y यानी क्या हो गया? L⁻x इंटू L⁻y, समथिंग ऑफ दिस टाइप। x⁻a इंटू x⁻b gives you what x⁻a plus b। so L⁻x L⁻y gives you what L⁻x plus y। 0 plus 0 बहुत डिफिकल्ट था, 0 आएगा। 0 minus 2y gives you what minus of 2y। अभी क्लियर? अब सोच, नेक्स्ट स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। सपोज ऐसा अगर x⁻a is equal to x⁻2, so if you compare the powers you get a equal to 2। याद है ऐसा कुछ? बोलो। x⁻2 is x⁻2, so x सेम है, so a will be equal to 2, comparing the powers। so now वैसे ही मैं कुछ करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, L⁻0 है और यहाँ पर L⁻x plus y है, मतलब L⁻0 should be equal to L⁻x plus y। डायमेंशंस M⁻0 0 वैसे भी इक्वल है, यानी 1 should be equal to what -2y। so now you will compare what powers on both sides। ओके अच्छा, व्हेन यू कंपेयर पावर आई वुड एडवाइज स्टूडेंट, कोई देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मैं एडवाइस करूंगा हमेशा उस पावर को पहले कंपेयर करो जिसमें एक ही वेरिएबल है। डर गए सब, एक ही वेरिएबल है। हाँ देख, अगर मैं L का पावर कंपेयर करता हूँ तो x और y दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता है या जो चेंज हो सकता है, या अननोन बोलना ज़्यादा राइट होगा। तो L⁻0 L⁻x plus y, x and y बोथ आर अननोन। यहाँ देख 1 है और यहाँ पे सिर्फ y है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इट इज बेटर टू कंपेयर द पावर्स जिसमें एक ही अननोन है। सो नाउ कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ द साइड, आई वुड से T⁻1 is T⁻−2y। Therefore can we say 1 equal to -2y। बच्चों साथ में रहो, पूरी मेहनत अब अपनी काम आएगी। -½ सो y का वैल्यू -½ है। माइनस मतलब डायरेक्टली या इनवर्सली, ये देख y का वैल्यू आ गया ना माइनस, डायमेंशन से तो फाइंड किया। सर हाफ का आपने कुछ बोला नहीं था, उसका टेंशन, पावर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जैसे 2 का मतलब स्क्वायर होता है, 3 का मतलब क्यूब होता है। हाफ मीन्स स्क्वायर रूट, 1/3 होगा तो क्यूब रूट। ओके, सो ये t का पावर कंपेयर करें। अब वैसे अगर मैं l का पावर कंपेयर करूँ, मुझे क्या मिलेगा बताओ बच्चों, प्लीज बताओ। l का पावर कंपेयर किया तो L⁻0 इज L⁻x plus y, यानी मुझे क्या मिला 0 इक्वल टू x plus y, यानी कैन वी से x इज इक्वल टू -of y, और y का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है वो -½ है।
सो मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2। हो सो x आपका प्लस हाफ आ रहा है, यानी इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके साथ इनवर्सली। क्या मेरे बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया अब कि टाइम पीरियड डिपेंड्स की जगह पे मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर रूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी स्क्वायर रूट। समझा? ये इजी है, खाली आपको स्टेप्स फॉलो करने। बोल फर्स्ट स्टेप क्या है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या है, अज्यूम whatever is given in the form of statement, convert that in the form of equation number 1. Step 2 bol, whatever quantities we have taken in equation number 1, you find dimensions. Step 3 bol, put dimensions of step 2 in equation number 1. Next step क्या होगा, comparing dimensions on both the sides to get values of x and y. अब क्या करना है, खत्म नहीं हुआ बच्चों। अब ये x और y वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। Put x and y back in equation number 1. यहाँ तक सब साथ में पक्का। अगेन स्टेप 3 को आप कॉपी कर लीजिए, 1 2 आप कॉपी कर चुके हैं, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। Okay, so now I'll write step 4. Step 4. Step 4. Step 4 में बोलेंगे put x and y in equation 1. Put x and y in equation 1. Let's do that. What do we get? चुपचाप तो नहीं बोलना चाहिए, t is equal to k L raised to x, x का वैल्यू हाफ था, मुझे याद है आपने अभी कॉपी किया था, g raised to y, y का वैल्यू माइनस हाफ। अब देख इसको मैं अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, वैसे आंसर ये राइट है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट इट मोर साइंटिफिकली। सो आई कैन से k स्क्वायर रूट ऑफ l, बोलो समझा? अच्छा डर गया, एक तो ना आप लोग जल्दी डरते हो, l raised to हाफ अपॉन g raised to हाफ। ऐसा कैसा, अरे माइनस पावर नीचे गया। अब बोल इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ g। नाउ सर फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस? हाफ मीन्स स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का ये नोटेशन है। दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूँ तो आई विल गेट t इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ l बाई g। ये है। एंड लेट मी टेल यू माई डियर स्टूडेंट, इन 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज ऑसिलेशन, जिसमें सेम डेरिवेशन आप करोगे और ये उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला। सो ये एक्चुअल फॉर्मूला, दिस इज न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट। दिस इज ओनली, घर बैठे बैठे बोल यस, डायमेंशनली करेक्ट। के का नॉलेज मुझे डायमेंशन से पता नहीं चलता है, तो सर फ्रॉम वेयर यू गेट इट? फॉर 12th स्टैंडर्ड विल वेट। ओके, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का बच्चों, इजी है, सिर्फ स्टेप फॉलो करो। एक बार वापस से स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। बोल स्टेप 1, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आप, सॉरी ये स्टेप 1 नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आप, फिर क्वेश्चन को आप इक्वेशन का फॉर्म दोगे, दैट इज योर स्टेप 1। स्टेप 2, इक्वेशन 1 में जो भी उसका डायमेंशंस फाइंड करो। स्टेप 3 में क्या था? पुट दोज डायमेंशंस बैक इन इक्वेशन नंबर 1। फिर पावर्स को कैलकुलेट करोगे, कंपेयर करके, पावर कंपेयर करके यू विल गेट एक्स एंड वाई। देन पुट एक्स एंड वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो आई गेस 4 स्टेप्स में अपना आंसर आ जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये उसका अप्रोक्सीमेशन है। क्या सबको समझ में आया हो? येस और नो? क्लियर है बच्चों? अब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो देंगे तो आप इजीली कर सकते हो। वन मोर वी विल बी डिस्कसिंग एट, थोड़ा पेस ज़्यादा होगा, एंड वन आई विल गिव यू फॉर होमवर्क। ओके, सो क्विकली नोट इट डाउन। अच्छा, आप अपनी बुक में लिख लीजिए बच्चों, डायमेंशंस का थर्ड एप्लीकेशन क्या है? टू डिराइव फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। So to derive formula of physical quantity, use 3 to derive formula of physical quantity. लिखो to derive formula of physical quantity, that is use 3. ठीक है, चलो। सो अब आप ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही है, बाय द वे मैंने आपको ये बताया नहीं, बट एक दो और क्वेश्चन आपकी बुक में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
लेट मी जस्ट सी, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तो इट विल बी बेटर. यस, आई गॉट वन क्वेश्चन. यो क्या लिख कर, चलो, वेरी नाइस. मैं क्या करता हूँ बच्चों पता है, जो डिफिकल्ट वाला है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और जो आपकी बुक में इजी वाला है वो मैं होमवर्क दे दूंगा, है ना. ओके, सो द इजी वन आपके बुक में पेज नंबर 15 पर द पीडीएफ दैट यू मस्ट हैव, अभी आपके होगा वो, ये आपको होमवर्क ट्राई करना है. पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये आप मेरे लिए ट्राई करोगे. और क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों, 10 इज बेस्ड ऑन फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन. 10 is based on first use, this is based on third use. Page 15, question number 9, question number 10. ठीक है, सो नाउ ओके, आप उसने नोट कर लीजिए पेज 15 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आप मुझे नेक्स्ट सेशन में करके बताओगे. ओके ओके, अब ये एक क्वेश्चन है. अगेन ये जो फॉर्मूला हम करने जा रहे हैं बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये ऐसा है कुछ, फोर्स. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इनका नोटेशन साथ में लिख लेता हूँ. फोर्स यानी एफ, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. Depends on mass of particle, that is m, velocity of particle, that is r. I'm sorry, अभी आएगा रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज आर. सो इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ पार्टिकल m, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v, रेडियस ऑफ सर्कल r. फाइंड फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल. वेरी वेरी वेरी, इतना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना बच्चों, जिससे आपकी दोस्ती होने वाली है. ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये आपने शायद किया होगा. ये कौन, सन. ये कौन, उसका ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रहा है. सो अर्थ इज अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सन, जो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्क्युलर मोशन. इसका मास m, सपोज इसकी वेलोसिटी v और ऑर्बिट का रेडियस r. So now sun exerts a force on earth which depends upon mass, velocity and radius. तो उसका फॉर्मूला डिराइव करना है. या फिर बच्चों फेवरेट आपका ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या परफॉर्म करता है, सर्क्युलर मोशन. सो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, या जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है. ये फोर्स बच्चों आगे जाके आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेवरेट फोर्स होने वाला है. इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्री बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. पिटल, अच्छा सेंट्री बिकॉज सेंटर के अलोंग है वो, पिटल यानी सेंटर के पास है. सो सेंट्रीपिटल, सेंटर के पास. ऐसा फोर्स जो सेंट्री की तरफ डायरेक्टेड होगा इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ये पूरा जो स्टोरी मैंने बोला, दिस इज बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्री इज सेंटर, पिटल यानी इसको सेंटर पसंद है, सेंटर सीकिंग फोर्स. ऐसा फोर्स जिसको सेंटर पसंद है, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ होगा, इज सेंट्रीपिटल फोर्स.
एनीवेज हमको दिमाग नहीं लगाना, हमको ये ऐसा कुछ दिया है, उसके बेसिस पे फॉर्मूला डिराइव करना है. सो प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन क्विकली. क्वेश्चन कॉपी करो. ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं और डिराइव करते हैं. आपने पॉज करके कॉपी कर लिया होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है. सो शुरू करें बच्चों. ओके, देख क्वेश्चन पढ़. फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन. सो इन स्टेप 1, व्हाट वाज स्टेप 1? assume whatever they have given, उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म दोगे. तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास. तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास. ये समझ में आया? आई डोंट नो डायरेक्टली इनवर्सली, सो आई टेक एक्स. एक्स पॉजिटिव आए तो डायरेक्टली, एक्स नेगेटिव आए तो इनवर्सली. यस, दैट इज द कॉन्फिडेंस. फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. तो रेस टू एक्स मत बोल बाबा, अभी वाई ना, दूसरा क्वांटिटी तो वाई. बता, फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेडियस. गेस कर क्या लिखूंगा? आर रेस टू वाई. अरे तीसरा ना, एक्स और वाई सेम होगा, वी डोंट नो. जेड. मतलब क्या होगा बच्चों? जितने पे डिपेंड करेगा उतना अननोन आप इंट्रोड्यूस कर देना, बस. समझा? So F depends upon mass, F depends upon velocity, and F depends upon radius. Okay. अच्छा, अभी तीनों को कंबाइन करके क्या लिखोगे? जल्दी बोलो. m raised to x, v raised to y, r raised to z. वेरी गुड बच्चों. नेक्स्ट मेरे साथ k into m raised to x, v raised to y, r raised to z. That is our equation number 1. बोल. फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगा था ना यहाँ पहुंचने में, सेकंड में इजी. वंस यू प्रैक्टिस थिंग्स बिकम्स वेरी इजी. चल, अभी नेक्स्ट स्टेप बोल. क्या था नेक्स्ट स्टेप? आप देख के बोल सकते हो. फाइंड डायमेंशंस. वेरी गुड. चलो फाइंड डायमेंशंस करते हैं. विल फाइंड डायमेंशंस. स्टेप 2 में फाइंड डायमेंशंस. फाइंड डायमेंशंस ऑफ इक्वेशन 1. चलो, इक्वेशन में सबसे पहले कौन है? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें. सबसे पहले फोर्स. बोल, फोर्स फंडामेंटल या डिराइव्ड है? डिराइव्ड है. फॉर्मूला क्या था? शाबाश, मास इनटू एक्सेलरेशन. देख, ये एडवांटेज, अगर फॉर्मूला याद है ना, आप कुछ भी कर सकते हो. मास इनटू एक्सेलरेशन. अब इसका यूनिट क्या होगा फिर बता? कि मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो कैन वी नॉट राइट डायमेंशंस ऑफ फोर्स एज चुपचाप L raised to 1, M raised to 1, T raised to -2. क्या मेरे बच्चे साथ में? ओके, फोर्स का तो हो गया. अभी बचा मास. बोलो, मास फंडामेंटल या डिराइव्ड? क्या है ना, सर भी इजी पूछते हैं. क्या करूं बच्चों, आदत है. चलो, सो मास फंडामेंटल है, यूनिट किलोग्राम है. चुपचाप L 0, M 1, T 0. खुश मत होना. M है या M raised to x है, raised to x है, raised to x है. चलो बताओ क्या लिखेंगे? M raised to x. सर F में क्यों नहीं किया? अरे F में पावर कुछ भी नहीं है ना. 0 इंटू एक्स, बहुत टफ था ना. चल, आ गया ये. वेरी गुड. अब मुझे पता है नेक्स्ट वन है वेलोसिटी. वेलोसिटी फंडामेंटल या डिराइव? फंडामेंटल या डिराइव? फंडामेंटल या डिराइव? जल्दी बोल. डिराइव. यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. जल्दी, चुपचाप. L M T. किलोग्राम है? नो सर. तो पावर 0. मीटर है? यस सर. ये -1. इसका पावर y, इसका भी पावर y. एक साथ बोल के आएगा v raised to y. जल्दी वेट मत कर. L raised to y, M raised to 0, T raised to -y. अभी कौन? रेडियस. छोटे बच्चे सा रेडियस. सो रेडियस का तो आपने बताया ही नहीं, फंडामेंटल है डिराइव्ड है. ऐसा क्या बच्चों? पता है रेडियस तो डिस्टेंस ही है ना एक तरह का. हाँ, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? बहुत टफ था ना. मीटर. हाँ, मीटर भी फंडामेंटल है. तो रेडियस का मैं लिखूंगा R. शुभ चाप वाली भाषा. L raised to 1, M raised to 0, T raised to 0. रेडियस raised to what we had? Z. तो यहाँ पर भी कौन आएगा? Z. तो जल्दी पता क्या लिखेंगे? R raised to Z, L raised to Z, M raised to 0, T raised to 0. Now what will I do? Next step बोलो क्या था? Put all dimensions in equation number 1. That's my step number 3. Step 3. फिर से एक बार बोलो क्या है step 3? सर बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं.
आई होप आप सबको दिख रहा है. पुट डायमेंशंस इन इक्वेशन 1. पुट डायमेंशंस in equation 1. What was step 1? Assume. Step 2, equation 1 के dimensions find कर. Step 3, now put dimensions back in equation number 1. Let's do that and see what we get. In equation number 1, f की जगह पर f के dimensions क्या है बताओ? l raised to 1, m raised to 1, t raised to minus 2 is equal to. ये बेचारा ओके एक गड़बड़ जो मुझसे हो गई, आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो. ये क्या है? Dimension less constant. Please do not forget to write this. चलिए भाई, so dimensions मैंने फोर्स के लिख लिए. नेक्स्ट कौन था बच्चों? मास. मास का l raised to 0, m raised to x, t raised to 0 into, I am writing below it, you are writing in your notebook. जहाँ स्पेस होगा तो इंटू करके लिखना. समझा भाई? नो स्पेस, सो बिलो नोटबुक स्पेस, सो राइट इट अहेड ऑफ दैट. फिर v रेस टू y, बोलो क्या होगा? l रेस टू y, m रेस टू 0, t रेस टू माइनस y. ओके, वन मोर टाइम. कौन है? r रेस टू z. बोल कॉपी कर. l रेस टू z, m रेस टू 0, t रेस टू 0. व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग? सारे टर्म्स एक साथ. ये l, अच्छा k भी है ना यहाँ पर. सो k इंटू क्या लिखेंगे बोलो? L0 Ly Lz. तो L रेस टू 0 प्लस y प्लस z. बच्चों इंडाइसिस का x रेस टू a इंटू x रेस टू b इज x रेस टू a प्लस b. प्लीज. फिर m का बता. m का फॉर m आई एम राइटिंग हियर, इसके नीचे लिख रहा हूँ. आप ऐसा मत करना, आप आगे लिखना. x0 0 विल गिव यू व्हाट? अच्छा ये इजी है, मैं कंजूसी करके लिख सकता हूँ. m रेस टू x प्लस 0 विल गिव यू x. 0 minus 5 0 will give you what? minus 5. ओ बच्चों समझा? पक्का? ओके, नाउ टेल मी क्या आएगा? l raised to 1, m raised to 1, t raised to minus 2 इसके इंटू जल्दी बोलो. l raised to y plus z, m raised to x and t raised to minus 5. नेक्स्ट स्टेप क्या था? कंपेयरिंग पावर्स. भूल गया. स्टेप मतलब इसी में था, कंपेयरिंग पावर्स. अच्छा, व्हेन यू कंपेयर पावर, सर ने क्या बोला है? वो पावर पहले कंपेयर करो जिसमें एक अननोन है. एक अननोन m raised to x. आई गॉट इट. m raised to x, m raised to 1. So x equals to 1. Next, t raised to minus y, t raised to minus 2. So I got minus y equal to minus 2, giving me y equals to 2. देख पॉजिटिव आ रहा है अब तक दोनों. अब क्या करते हैं? l का पावर कंपेयर करते हैं. चलो, l रेस टू y प्लस z इज इक्वल टू l रेस टू y प्लस z. यहाँ कौन है? l रेस टू 1 है, यानी कि आपका y प्लस z इक्वल टू 1 है. यानी कि y का वैल्यू तो 2 था. 2 प्लस z इक्वल टू 1 मीन्स योर z इक्वल टू 1 माइनस 2 मीन्स z इक्वल टू माइनस 1. ओ हो, ये नेगेटिव आ गया. सो एक टर्म नेगेटिव आ गया. सो आई गॉट वैल्यू ऑफ x. यस सर. I got value of y, yes sir. I got value of z, yes sir. What is the next step? Put all these dimensions back in equation number 1. सारे dimensions कहाँ substitute करोगे? Equation number 1 में. Ready आप? करूँ मैं ऐसा? चलो, so मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक ऐसे रखता हूँ. ये वाला पार्ट फोर्स का dimensions में हटा रहा हूँ. अगर आप लिखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो. ठीक है, चलो. So put step 4. Put x, y and z. I'm sorry. Step 4 अच्छे से लिखते. Put x, y and z in equation 1. Let's do that and see what we get. We get f equals to k m raised to x. What is x? 1. v raised to y. Y is 2. r raised to z. z is minus 1. So क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? k, देख raised to 1 मतलब वही है, v square upon r. And let me tell you students, जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, इनफैक्ट ये तो अभी 11th में भी है, हाँ,
तो सेकेंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला का एग्जैक्ट वर्जन है, F इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पे देख k का वैल्यू 1 हो गया। सो रेशियो कैसे, वो आपको आई टोल्ड यू डायमेंशंस में नहीं पता चलता है, आगे वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। सो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये डायमेंशन से हमने फाइंड किया। सो इज इट डायमेंशनली करेक्ट? यस सर। न्यूमेरिकली करेक्ट? नो सर। न्यूमेरिकली करेक्ट? यस सर। डायमेंशनली करेक्ट? ऑफ कोर्स। एनी इक्वेशन दैट इज न्यूमेरिकली करेक्ट हैज टू बी डायमेंशनली करेक्ट। तो ये था बच्चों सेकंड क्वेश्चन थर्ड एप्लीकेशन का। वन क्वेश्चन आई हैव गिवन यू फॉर होमवर्क, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 9। Are we clear? ओके, सो आप स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं बच्चों। फॉर क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने होमवर्क दिया है, आई विल जस्ट गिव यू हिंट सो दैट इट बिकम्स इजी। उसमें बोला v इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस b अपॉन टी प्लस सी प्लस v नॉट। आपको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C। टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C। V नॉट एक कांस्टेंट है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशंस आप ऑलरेडी जानते हो, और ये भी वेलोसिटी है। अब इसमें डायमेंशंस A, B, C का कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पर फर्स्ट यूज अप्लाई करना है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। Dimensions of V will be same as dimensions of A into T. फिर dimensions of this and dimensions of velocity will also be same. उस तरीके से आप सॉल्व करना। डर लगेगा? ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, सो जो इसका डायमेंशंस है वेलोसिटी का तो आप जानते हो, वो सेम इसका भी होना चाहिए। ठीक है, चलो आप ये प्लीज ट्राई करना बच्चों, इजी है, इजी, एकदम इजी है। आपको AT का डायमेंशन विल बी सेम एज वेलोसिटी, तो T का T इज टाइम, टाइम का डायमेंशन आप जानते हो, तो आप करना और हम वो डिस्कस करेंगे फिर। ओके, थैंक यू सो मच।